Okay, good morning, everybody. My name is Anupam Kumar Mishra. I'm the advocate founder of this firm, Lexis and Company, which we started in the year 2014. And we were into practice since then. And from the last few months, this pandemic gave us an amazing experience to start this concept of virtual internship. Previously, we used to have only physical internship program for our fellow team members. However, due to this pandemic, we also started the concept of virtual internship, seeing the demand of the candidates. And the main purpose behind this virtual internship program was to give a similar kind of learning experience to the candidate who are not in a condition, or since the world is moving towards digitalization. So physical internship, though it is always good, even I prefer physical internship. However, seeing the pandemic situation, what we can do is we thought that why not have some concept of virtual internship where similar kind of experience can be given to the team members who are not in a situation or who do not get sufficient opportunity to join a physical internship due to their college or other assignment, or due to shortage or unavailability of physical internship. Because based on the recent amendments of the Bar Council of India rules and the expectations from Bar Council and the quality of candidates who are coming as a new generation lawyer, they lack in practical exposure and they lack in practical knowledge. Though they clear the exam, though they complete LLB, however, somehow it is being noticed on a daily basis in court that the new generation candidates who are coming, based on the current study pattern of law colleges in India, it has been noticed that the candidate have lack of knowledge on certain area. Because of that, they are not able to excel in their professional field. So keeping all these points in mind, we thought of starting this internship to cover the gap between the college and the physical internship which is being offered by law firm. In this Before starting this program, there were certain things which we worked out where the candidates are mostly lacking. So this internship has been completely targeted towards the first generation lawyer, because the new lawyers or new advocates who start their practice, and in case if they have somebody in their family from the past who are an advocate or who are into legal practice, for them it is very easy to start their practice once they complete their law, because from their childhood they have been seeing the entire system of legal practice in their house through either their mother or father or brother or sister or any of their relative who are they closely attached to. However, the maximum somebody who faces the obstacle is the first generation lawyer who don't have anybody in their family as an advocate, and it becomes very difficult for them to survive in the market, because even after completing LLB, if they want to start their own practice, they don't have sufficient knowledge or they don't have sufficient exposure. If they go to a law firm to join a job, they face the similar question that do you have any previous experience? So the question comes back same, that if you don't give a chance to a new generation lawyer, how will they gain experience? And since they are a first generation lawyer, so they do not have sufficient background also
about or sufficient knowledge about the concept of legal practice. So this internship program has been started with a thought, keeping in mind about the first generation lawyer, that after you complete your law, whether you want to start your independent practice or you want to go to a law firm or a corporate firm or into any MNC and start your legal practice, what are the things which are the prerequisites for any advocate or any lawyer or any legal practitioner or any legal consultant? So, in this 1 month of internship, see, let me be very honest. In this 1 month of internship, it is very much next to impossible to make you like Ram Jethmalani or Fali Nariman or Harish Salve. It is impossible. However, it is possible that in this 1 month of internship, we can make you understand, we can make you realize what is the formula behind becoming Ram Jethmalani or Fali Nariman or Harish Salve or Gopal Subramaniam or any top level lawyer in India. It is definitely possible to make you understand, to make you realize, and to have the concept very clear in our mind. What are the qualities they had? Because even they are human being, and even they started their legal practice one day from scratch level, that is from point zero. And whatever they are today, what are the efforts, what are the qualities, what are the struggles they have gone through to complete this journey. So the key points which we are going to follow in this internship of 1 month is, first thing what I faced because even I am a first generation lawyer and I don't have anybody in my family who is closely or at a distant level also attached to this profession. I didn't have anybody to help me, and I didn't have anybody to guide me when I was doing my law or when I completed my law. And I went to so many law firms after completing my LLB to give interview, and it was the same question which was coming from all the law firms. So, keeping everything in mind, I thought of this concept. In this 1 month of internship, first thing which we are going to cover is the communication skill. Communication is the major setback which most of the first generation lawyer face, because talking in English and business communication are two different things, and that too the business communication to be executed in the courtroom or with the colleagues or with the team members or with any other stakeholder related to this legal profession is very important. Second thing is public speaking. Since this entire profession is dependent on public speaking, where every day you have to face the situation, face the judge, face the courtroom, face the board, and you need to be actually very good in public speaking. The phobia of facing the public, the phobia of facing the audience is the major setback which most of the candidates face. Talking to a friend, talking to your teacher is different. But when you actually land up in the court and when you start to argue in front of the judge, where other 50 or 100 other advocates are sitting in the courtroom and other litigants are also there, I have seen many candidates, they are very good in law, they are very good in legal knowledge, they are very good in communication, but still they can't argue in the court because they lack in public speaking. Next thing is time management. Time management is very important part.
As an independent, as I said, this 1 month of internship will make you understand the importance of time management in this profession. And to start with, as an independent legal practitioner, suppose after completing law, if you want to start your legal practice independently, you don't want to work, because most of the people who join this profession, they have a aim that today or tomorrow they want to start their own legal practice. So this internship has been designed keeping that point also in mind. Suppose after completing your law, you want to start your own law firm and you want to handle everything alone. How will you do that? Because running a law firm or to start your independent practice is not only about drafting, filing, and court appearance. It has many other things, and that can only be achieved successfully if you are good in time management. Because every day in the morning, you have to go to the court, appear, argue in the case. Second half, you need to again come to your office. You have to prepare your draft for the new cases which has come to you. Evening time, you have to be busy with client consultation. And in the night time, you have to be busy with your new cases, which you have to argue tomorrow in the court. So your family time is finished. So work-life balance is very important, my dear team members. Or else, somehow or other, you will face difficulty in either handling your profession or your family. Because if you give too much time to your profession, your family will have problem. If you give too less time to your profession will be disturbed. So time management is very important, because running your independent legal practice, or even if you are working in an MNC, they are huge workload, huge. And you have to manage this, because in this profession, this is such a profession where discipline is very important. And there is no space for excuse. I could not do it. I did not get time. I was busy. I had other work. Nobody is going to listen to you. You cannot tell the judge that I cannot argue in the case because yesterday night I had the birthday party in my house, or I had my college assignment, or I had to give online exam. Nobody will listen to this. So there is no space for excuse. By hook or by crook, you have to do it anyway, anyhow. So the word anyway, anyhow comes. That means instead of finding an excuse, you have to find a solution. How to do it. And automatically, when you start with the thought process that I have to do it, then automatically the concept comes, where there is a will, there is a way. So you need to start your work with a mindset that I have to do it. Because if you spend more energy in finding an excuse that how should I come out of it so that I don't need to do this work, so automatically your entire energy will be focused on that. And if you just utilize 5% of the same energy in finding a way out, automatically you'll see there is a way out of it. And you will find a solution how to complete it, keeping everything in place instead of disturbing anything. This internship is also going to teach us the art of writing and research, because I see most of the new generation lawyer in the court are dependent on typist somehow or other, through any reference, through their family, friends, relative. After becoming an advocate, they get some small work, but they don't know how to draft, how to do research, how to find relevant judgment. Because good writing is very important in court, because your entire case is dependent on that. If you don't do good drafting, if you don't do good writing, automatically judge will not accept that the way you want to present it. Maybe you want to present it in a different way, but you lack in writing, you lack in drafting skills. Because of that,
The case could not be presented the way you wanted. Relevant judgment, citations, the relief what you are asking from the court. You need to be very good in research. Because whatever relief you are asking in your petition or in your document, if you go ahead and cite relevant judgment, automatically you'll have to talk less in the court. Because in the courtroom, you get very less time given by the judge. So you have to be very good in judgment writing, at the same time research work, so that for every relief what you are asking from the court, you have a relevant citation and judgment. So this internship is also going to train you somehow in writing skills. All right. So what we have decided in this internship program, on a daily basis, we are going to work on, first thing, as I said, is your presentation and communication skill and art of public speaking. So for this, what we have done, we are going to give you daily assignment. Daily means daily. For next 30 days, you'll have daily assignment, 2 assignment first, which will be focused on public speaking, communication, and to bring you out from the phobia of public speaking. You will be given topics. You can choose a topic. In fact, we will not give you topic, because if we give you topic, it might happen that everybody has their own choice. Somebody want to specialize in corporate, somebody wants to specialize in civil, somebody wants to specialize in criminal, somebody wants to specialize in paralegal. So every day you have to choose 2 topics. I'm telling about the first set of assignment. So in first set of assignment, you will have to make 2 videos on a daily basis of time duration, minimum 5 minutes, maximum 10 minutes. Between 5 to 10 minutes, you have to choose small topics from the area of your interest. You choose a topic, you choose the area, and that should not be a theory topic. Kindly don't make a video what is Article 376 or what is Section 376 or what is 498 or what is IPC, what is CPC, what is CRPC. You will make videos on the practical questions, that what client will ask you if you are doing a client counseling. You can research on Google. You will get several thousand and lakhs of question and answer on the Google. You need to research that. You need to note down. You need to research the relevant answer for that. And then you are going to make a small presentation. For example, a client might come and ask you that, "Sir, I'm a Hindu. I want to file a case of divorce in the court. It is a contested divorce. What are the documents which are required? Or what should I do?" Suppose, second question, for example, a lady comes to you and she says that my husband is not giving me expenses for my household expenses. So I want to claim maintenance from my husband. What do I need to do? So these kind of practical questions which will come to us from our clients on a daily basis. So this is the first target. Second video will be on the current affairs. You need to be updated in this legal profession. It is very important. Either you are planning for judiciary exam, or you are planning to join a corporate law firm, or you want to go ahead and start your independent practice. You need to be updated with the current affairs. So the second video what you are going to make will be on current affairs, on legal news. Whatever new thing is happening in the legal world, you need to choose a topic and you need to again make a video presentation of 5 to 10 minutes. Minimum 5 minutes, maximum 10 minutes. All right? And kindly stick to the time limit, because if your video is too heavy, try to make it in smaller format
so that the size does not become too big. Because if most of the people are operating from our mobile phone only, so if your video size is too heavy, you will have difficulty in sending the video to us. We will send you a link of our Telegram group. You need to install Telegram in your phone. And on a daily basis, all of you have to send these two video in our Telegram group. So that's the reason we have kept the time limit as only 5 to 10 minutes, so that you don't face difficulty and your video size doesn't become big. And why we have given two videos? Because if we go ahead and send all the video in one single Telegram group, so on an average basis, we are about 70 candidates who have joined this internship. So every day two video means 140 video. And on this, we will go on the concept of cumulative study or teamwork. So if you are making two video, so you learn two new things. And if you send all the 70 candidates, if you send your video in one single group, so total makes 140 video. So on 140 video, you will be sending in one single Telegram group. And whenever you get time, you see your own video also. And you see the video made by other team members also. What they have made, what good ideas, what good concept they have implemented in their video. What is something unique they are doing in their video. So automatically you learn from their video also, and you improvise your skills and you implement the same thing in your video. The same art, the same techniques, the same strategy, the same body language, the same gesture you can implement. So automatically on a daily basis, you learn 140 new things. And if you learn 140 new things, if you come to know about 140 new topics on a daily basis, on a month, in one single month, which will be of 30 days, we'll be working for 30 days next for this entire June. So how many topics you will cover? Can anybody tell me? If we take 70 team members, 2 video per day, how many topics will cover in one single month? Anybody can answer me? 2 into 70 into 30? Anybody can answer me? Or you can type in the chat box. 4,200. 4,200 topics. Just imagine, guys, in 1 month of internship, if you are aware about 4,200 topics, trust me, to start with your legal practice, believe me, it will be an amazing achievement if you are aware about 4,200 things, 4,200 concepts, 4,200 topics in legal practice. Believe me, as a first generation lawyer, to start with your legal practice, that will be almost, I will not say sufficient, I'll say almost sufficient, that you will be aware about almost all the common terminology or common things which you might face as a first generation lawyer to start with. Okay. Second thing what we are going to work is on our writing and research skills. So on writing and research skill, you need to go ahead. We have made a blog which is exclusive by Lexis and Company, and the name of the blog is lexclick.com. You need to, on a daily basis, in the similar way, you need to choose a topic, you need to do research on that, and you need to write a small article from your area of interest. You choose the topic from your area of interest, and you need to write one article of 500 word minimum,
You can write more than that also. That depends on your choice and your time management. But keeping your other schedules also in hand, we have kept the limit as 500 word. It can be a legal article. It can be a simple question from our any client. It can be on any socio-political topic. It can be on current affairs. It can be on current legal issue, or it can be based on any judgment, or it can be on any recent order given by any court. It can be any type of case analysis. It can be anything. In this profession, believe me, guys, many candidate, I have seen many candidate. Sir, I am going to practice in court. ये क्रिमिनल वाला टॉपिक मेरे किसी काम का नहीं है. आई डोंट हैव इंटरेस्ट. बिलीव मी गाइस, इन दिस प्रोफेशन ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपके काम का नहीं है. In this profession, if you really want to excel, if you really want to be the best, you have to follow the concept of jack of all trade, master of none. आपको सब कुछ सीखना होगा. There is no harm in learning, and you should be open to learning everything, and you should be open to taking feedbacks. For example, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इन कॉर्पोरेट लॉ. आपके पास सारे क्लाइंट आएंगे कॉर्पोरेट लॉ में. एक क्लाइंट आया, आपको उसने केस दिया, आपने उसका काम बहुत अच्छा से किया, उसके कंपनी का केस. उसने 2 केस दिया, 3 केस दिया, 4 केस दिया, 5 केस दिया. करते करते उसके अच्छे खासे पोर्टफोलियो आपके पास आ गए. सडनली उस कंपनी का जो लीगल हेड है, जो आपको सारा काम अलॉट करता है, उसके घर में कोई प्रॉपर्टी का इशू है. उसने आपको बोला, वकील साहब मेरा एक पर्सनल मैटर है, कर दोगे आप? डू यू थिंक एज अ लॉयर यू आर गोइंग टू टेल हिम, भाई मैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट में प्रैक्टिस करता हूं, मैं सिविल प्रॉपर्टी का केसेस मेरे से नहीं होगा? बिकॉज इफ यू डू दैट, दैट विल बी अ बिगेस्ट मिस्टेक. क्योंकि अगर वो दूसरे लॉयर के पास गया, दूसरा लॉयर उसकी काउंसलिंग करेगा और उसको पता चलेगा ही इज द लीगल हेड ऑफ एनी कंपनी, और ऑब्वियसली उससे वो बॉन्डिंग डेवलप करेगा, एंड उसको पता चलेगा कि इसने XYZ लॉयर को 20-25 केस दे रखे हैं. तो उसके बाद वो उस लीगल हेड की और ज्यादा खातिरदारी करेगा, सो दैट वो 20-25 केस जो आपके पास पड़े हुए हैं वो सारे के सारे नए लॉयर के पास आ जाएं. अब आ गया ये सिविल की स्टोरी. अब मान लिया आपने किसी तरीके से कर भी लिया सिविल केस, चलो क्लाइंट जाना नहीं चाहिए. अब उस प्रॉपर्टी की वजह से उसके घर में हो गया मारपीट, एक दूसरे का सर फोड़ दिया. तो कौन सा केस बना? कैन एनीबॉडी टेल मी? कैन एनीबॉडी टेल मी? सब क्रिमिनल. क्रिमिनल केस बना, राइट. अब उस सिचुएशन में क्या आपको लगता है वो किसी और लॉयर के पास जाएगा उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए? बिल्कुल नहीं. ही विल टेल यू ओनली, अरे वकील साहब वो जो अपना प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा था उसमें तो यार कल रात को बहुत जोर से मारपीट हो गई, रात भर हम थाने में बैठे हुए थे, प्लीज आओ आके बचाओ हमें, बेल कराओ हमारी. उस सिचुएशन में आप ऐसे स्पेल बाउंड सिचुएशन में हो, आपने कभी क्रिमिनल की पढ़ाई नहीं की, किसी तरीके से तो मजबूरी में 25 केस के लालच में सिविल केस प्रॉपर्टी का ले लिया. अब क्रिमिनल का क्या करें? क्या बोलोगे क्लाइंट को? सर मैं नहीं कर सकता, कोई दूसरा लॉयर ढूंढ लो, थाने में फंसे हुए हो, मार खाओ पुलिस वाले से, मैं कुछ नहीं कर सकता? या सुबह सुबह 4 बज रहे, फटाफट मुंह हाथ धोगे, ब्रश करोगे, रेडी होके भागोगे पुलिस स्टेशन? इसलिए नहीं कि क्लाइंट को मार खाने से बचाना है, इसलिए मेरा 25 केस ना चला जाए, भाग भाग के जाओगे ऑब्वियसली. क्यों 25 केस बचाने हैं? अब वहां जाके करोगे क्या? बेल कैसे कराओगे अगर पता ही नहीं है बेल बॉन्ड कैसे फिलअप किया जाता है, या बेल फर्निश कैसे की जाती है, थाने से बेल कैसे कराई जाती है? कैसे बचाओगे क्लाइंट के सामने? सीखे हुए तो हो नहीं, इंटरेस्ट है कॉर्पोरेट लॉ में. या तो फिर थाने वाले के सामने बेइज्जती, या अपने क्लाइंट के सामने बेइज्जती. तो ये स्टोरी मैंने इसलिए समझाई बिकॉज इवन एज अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था. आई फेस सिमिलर सिचुएशंस. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हार्डकोर फाइनेंस.
कॉर्पोरेट लॉ में स्पेशलाइज किया, पीएचडी किया मैनेजमेंट में, और फाइनली कुछ क्लाइंट प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ते गई, क्रिमिनल केसेस भी आते गए, फैमिली मैटर भी आते गए, सब कुछ आते गए। और अगर फर्स्ट जनरेशन लॉयर के पास ऐसे ही काम कम आता है, बिकॉज आपके पास ना ही शोबाजी करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, ना ही आपके पास कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जो आपको हेल्प करे, केस दे, रेफरेंस दे, और ना ही आपके पास और कोई सोर्स है, तो एवरी क्लाइंट यू मेक दैट मेक्स योर पोर्टफोलियो। एक भी क्लाइंट को यू कैन नॉट अफोर्ड टू लेट इट गो। सो यू हैव टू नो एवरीथिंग इन द इनिशियल स्टेज ऑफ योर करियर। धीरे 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 वो स्टार्टिंग में वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, सो यू कांट बी चूजर्स एट द इनिशियल स्टेज। और आपको ऐसे भी कोर्ट रूम में कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा, वो देखेगा आपकी आर्गुमेंट कैसी है, और जितने टाइप के केस में आर्गुमेंट करोगे आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, अपनी एक्सपोजर भी बढ़ेगी, फेस वैल्यू भी बनेगी कोर्ट में। कोर्ट में फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार आपकी नॉलेज कम भी होती है, फेस वैल्यू अच्छी होती है तो आपको रिलीफ मिल जाता है। तो फेस वैल्यू भी बनता है जितना ज्यादा केस में आप अपीयर करोगे। उसके बाद में धीरे 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 करके केस बढ़ते जाएगा। जब आपको लगे किसी स्पेसिफिक एरिया में आपके केस बढ़ गए, आपकी नॉलेज बढ़ गई, ऑटोमेटिकली आप किसी एक एरिया में 100, 150, 200 के केस में आप अपीयर करोगे, आपके ऑटोमेटिकली उस एरिया में स्पेशलाइज हो जाएगी। देन यू कैन स्टार्ट बिकम चूजी। नहीं, मेरे को ज्यादा केस सिविल का आ रहा है, मैं सिविल में स्पेशलाइज करूंगा। मेरे को ज्यादा केस क्रिमिनल का आ रहा है, मैंने ज्यादा केसेस में अपीयर किया, मैं क्रिमिनल को अपना मेन एरिया बनाऊंगा। बट यू डू दैट आफ्टर 1 to 2 years मिनिमम। पहला 2 साल यू डू एवरीथिंग, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू लर्न एवरीथिंग। तो आई विल कम बैक टू पवेलियन अगेन। सो वी हैव टू राइट 1 आर्टिकल डेली। जिस टाइप से आप वीडियो बनाने के लिए अपनी टॉपिक खुद चूज करोगे, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट खुद चूज करोगे, यू टेक आइडियाज फ्रॉम द अदर टीम मेंबर्स ऑल्सो। जो दूसरे टीम मेंबर किस टाइप की टॉपिक चूज कर रहे हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। अलग अलग जजमेंट, अलग अलग ऑर्डर्स, अलग अलग केसेस पे, केस लॉज पे रिसर्च करो, उस पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखो। कोई पुराना अच्छा जजमेंट ले लिया, ले करके उस पर रिसर्च किया। एज अ लॉयर यू राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप जज होते, व्हाट यू वुड हैव डन। केस एनालिसिस करो, क्लाइंट के जो क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चन, उसके आंसर्स लिखो, उसके सोल्यूशन लिखो। एंड यू नीड टू पोस्ट दिस। ये काम आपको डेली सिर्फ एक आर्टिकल लिखना है फ्रॉम ऑल दीज ऑप्शन जो मैंने ऑप्शन दिए, जैसे जजमेंट, आर्टिकल, लीगल इशू, करंट अफेयर, कंटेंट में जैसे केस एनालिसिस हो गया, क्लाइंट के क्वेश्चन, क्लाइंट इवैल्यूएशन हो गया, क्लाइंट ब्रीफिंग हो गया, या किसी टाइप का ड्राफ्टिंग हो गया, चाहे एक लीगल नोटिस बना लिया, या पुलिस कंप्लेन बना लिया, या कोई छोटा सा पिटिशन बना लिया, या कोई एक अपना इमेजिनरी केस डिजाइन करके उसके रिलेटेड एक पिटिशन छोटा सा बना लिया, एक एप्लीकेशन बना लिया, या कोई एफिडेविट बना लिया, या कुछ भी बना लिया। एनीथिंग, कुछ भी करो, आई डोंट माइंड, but any one topic you have to choose on a daily basis and you have to write that article. उस आर्टिकल्स के गाइडलाइन क्या होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, वीडियो के गाइडलाइन क्या होंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। एंड यू नीड टू पोस्ट दिस आर्टिकल ऑन आवर वेबसाइट। पोस्ट करने का तरीका क्या है वो भी आपको इंस्ट्रक्शनल वीडियो दे दिया जाएगा। And you need to post it on our website, that is lexclick.com, and this will remain forever your exclusive property for the whole life, because वहां पे आप अपना नाम लिखोगे नीचे में, so that you can use this article for your reference। अपने सीवी में भी मेंशन करोगे कि आपकी ये आर्टिकल पब्लिश्ड है इस वेबसाइट पे, so that it becomes an asset। या कोई भी आपके वीडियो रहेंगे जो आप बनाओगे, उसे हम डेली बेसिस में लेक्स क्लिक के नाम से हमने एक चैनल भी बनाया है, यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हमारे सारे टीम मेंबर्स जो भी वीडियो बनाते हैं हम उसे अपलोड करते हैं। And we will be uploading all your video which you can share with your family and friends, relative, all your social media. So, and you can ask your family and friends about the feedback, and they will guide you, they will give you feedback so that how you can improvise yourself where you are lacking। आप दूसरे की भी वीडियोस देखो, और ये वीडियो आपके खुद के रहेंगे होल लाइफ। यू कैन यूज दैट, वी विल शेयर दैट विथ यू प्रज्ञा, डोंट वरी।
सो ये आपके हमेशा एसेट रहेंगे, आप फ्यूचर में भी कहीं भी रेफरेंस में दे सकते हो। दीज आर द इवेंट्स विच आई हैव पार्टिसिपेटेड, दीज आर द आर्टिकल्स विच आई हैव रिटन, दीज आर द आर्टिकल्स विच हैज बीन पब्लिश्ड। सो ये आपका एसेट रहेगा फॉर योर होल लाइफ। उसके बाद में थर्ड थिंग हम करेंगे लाइव सेशन। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है, दे लैक इन प्रैक्टिकल नॉलेज। कोर्ट में क्या होता है, फाइलिंग कैसे करनी है, कोर्ट में जाके आर्ग्यू कैसे करना है, या क्लाइंट के इस टाइप के क्वेश्चन का हम क्या आंसर दें, या मेरे को एक नया क्लाइंट मिला इस टाइप का केस है, मैं उसको कैसे प्राइस कोट करूं, कितना पैसा बोलूं, उसका काम कैसे करना है, क्लाइंट को क्या एडवाइस दूं, इस टाइप का क्वेश्चन पे विच इज द बेस्ट केस विच आई कैन सजेस्ट टू माई क्लाइंट। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। ये पिटिशन बनाना है, इसको ड्राफ्ट कैसे करूं, ये लीगल नोटिस भेजना है, लीगल नोटिस का फॉर्मेट क्या है, ये चीजें हमें पता नहीं होती एज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, और हमें कोई सिखाता भी नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज के डेट में, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, अगर आप किसी भी लॉ फर्म में फिजिकल इंटर्नशिप में भी जाते हो ना, द कंपटीशन इज वेरी हाई। सबको सवा शेर बनना है, किसी को शेर नहीं बनना है। और सब ये सोचता है कि अगर मैंने इसको सिखा दिया तो फिर मैं आउट ऑफ द बॉक्स कैसे बनूंगा, मैं अपने बॉस को कैसे इम्प्रेस करूंगा, या ये मेरे से आगे निकल जाएगा। इनफैक्ट तक कि बहुत कड़वा सच है, सीनियर्स भी नहीं सिखाते हैं सब कुछ, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैंने सब कुछ अपने जूनियर को सिखा दिया तो ये मेरा भी गुरु निकल जाएगा, एक दिन मेरा कंपटीटर बन जाएगा। सो इवन दे वांट यू टू रिमेन हैंडीकैप्ड फॉर योर होल लाइफ, सो दैट आप सारी जिंदगी के लिए बंधुआ मजदूर बने रहो। बट हमें तो बनना वकील है, आज नहीं तो कल अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी सफिशिएंट होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू हैव रेगुलर लाइव सेशन जितना हो सकेगा। देयर इज नो कमिटमेंट गाइस। सो कल जाके मुझे मत बोलना सर आपने कमिटमेंट दी थी, रोज लाइव सेशन कराओगे। मेरे लिए पॉसिबल होगा बिकॉज इवन वी ऑल हैव वेरी बिजी स्केड्यूल, बिकॉज वी आर इनटू डेली प्रैक्टिस, फुल टाइम प्रैक्टिस में है। हाउएवर इस इंटर्नशिप का जो पर्पस है, हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइव सेशन कराएंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ आपके लिए अटेंड करना, एंड ये किसी के लिए मैंडेटरी नहीं है ये लाइव सेशन अटेंड करना। अगर आपका कॉलेज है, अपना आपका अदर कमिटमेंट है, जिसको पढ़ाई करना है करो, जिसको नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी। मैं किसी को जबरदस्ती गला पकड़ के तो लाइव सेशन अटेंड नहीं करवा सकता, ये आपकी मर्जी। ये सारे के सारे सेशन रिकॉर्ड किए जाएंगे और इसकी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, you always have the option to go to our channel and watch that live session. So हमने इस चीज को भी ध्यान में रखा है that if anybody, जैसे सपोज हमारा लाइव सेशन हुआ सुबह 9 बजे या दिन में 2 बजे या शाम को 4 बजे या 6 बजे, और उस समय आप किसी और काम से बिजी हो, सो कीपिंग दिस इन माइंड वी हैव वर्कड अपॉन अ सोल्यूशन। हम हर लाइव सेशन को रिकॉर्ड करेंगे एंड उसके रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिए जाएंगे कि कभी भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसको देखो एंड यू कैन कम एट पार विद द अदर कैंडिडेट। आपको भी पता चले क्या हुआ था उस लाइव सेशन में, और जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाएंगे या जो भी नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे, आप उस वीडियो को देखो एंड एज फॉर द पर्पस ऑफ मार्किंग योर अटेंडेंस आप अपने नाम उस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो यू कैन आस्क देन एंड देयर, पर अगर आप बाद में देखते हो थ्रू द यूट्यूब चैनल तो आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वी विल ट्राई टू आंसर ऑलमोस्ट ऑल योर क्वेश्चंस थ्रू द कमेंट बॉक्स ओनली। ठीक है, हमारी कोशिश रहेगी हम जितना ज्यादा हो सके आपको सिखाएं। उसके अलावा लाइव सेशन हो गया, पब्लिक स्पीकिंग वाला पार्ट हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गया, और ये सारा चीज अगर आप डेली बेसिस में करोगे तो जो चीज मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट, आपकी स्कूल कॉलेज एक्टिविटीज, आपके फैमिली कमिटमेंट्स प्लस ये इंटर्नशिप, ये सारी चीज को अगर आप एक इंटेंशन से करोगे कि मुझे सब कुछ मैनेज करना है, आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन सो दैट नथिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड,
So automatically by the end of this internship, you will also learn time management, which is very important. ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में आपको यस आई अग्री, स्टार्टिंग में थोड़ा हेक्टिक लगेगा, बट गाइस अगर हमारे अंदर वो जुनून रहेगा, ये हौसला रहेगा कि हमें इसको किसी भी हालत में करना है कंप्लीट, हमें रास्ता ढूंढना है, एक्सक्यूज नहीं। अगर एक्सक्यूज ढूंढेंगे तो एक्सक्यूज का लिस्ट बन जाएगा, रास्ता ढूंढेंगे तो रास्ता का लिस्ट निकलेगा, एंड ऑटोमेटिकली यू चूज द बेस्ट वन। बट excuse does not lead you to success. Something doing it successfully leads you to success. If you give your 100%, the law of karma says you will get back 100%. अगर आप 99% एफर्ट डालोगे तो आप 99% ही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट 100%. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट. स्टार्टिंग में यस आई अग्री थोड़ा हेक्टिक होगा, बट बिलीव मी गाइस, 1 महीना अगर आपने सही से इस इंटर्नशिप को कर लिया, जो सेम चीज मैंने अपने लास्ट वाले बैच को बोला था, एंड बहुत बच्चों ने इस चीज को शुरू में मजाक समझा, बट गो एंड आस्क. हमने बहुत सारे फीडबैक वीडियो लिए हैं, लास्ट बैच कल खत्म हुआ है लास्ट मंथ का, एंड वी हैव टेकन फीडबैक वीडियो फ्रॉम द टीम मेंबर्स. और जिन बच्चों ने इस इंटर्नशिप को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, यस स्टार्टिंग में उनके लिए हेक्टिक था, but yes, they have realized at the day end that yes, this internship has been beneficial for them. And believe me, आपके लिए भी ये beneficial ही होगा. और ये चीज आपको आज realize नहीं होगा, but yes, I will ask you the same question on the day end, on the day of convocation, how this internship has benefited you. And believe me, you are going to give the same feedback. अभी हमें ये सारा चीज सुन के थोड़ा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, बट बिलीव मी इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, क्योंकि अगर हम टाइम वे में कॉन्सेप्ट में अगर कैलकुलेट करें तो लाइव सेशन आपके लिए मैंडेटरी नहीं है. आपको टाइम मिले आप लाइव सेशन अटेंड करो, टाइम नहीं मिले तो अपने फ्री टाइम में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप अटेंड कर सकते हो. वीडियो देखो, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, उसी वीडियो पे कमेंट करके पूछो. एवरीबडी हु वॉचेस द वीडियो, दे हैव टू मार्क देयर अटेंडेंस बाय राइटिंग देयर नेम इन द कमेंट बॉक्स ऑन द यूट्यूब चैनल, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि हाँ आपने ये सेशन अटेंड किया है. उसके अलावा क्योंकि कभी अगर हम कोई टास्क देते हैं उस वीडियो पे तो हमें पता रहेगा किसने किसने अटेंड किया है. सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग यू टू मार्क योर अटेंडेंस. उसके अलावा ये चीज मैंडेटरी नहीं है, तो ये चीज आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से कर सकते हो. जो आपको मेनली टाइम देना है इज राइटिंग. जो आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग वाला पार्ट है, उसमें अगर हम 500 वर्ड की आर्टिकल लिखते हैं, कितना टाइम लगेगा? जैसे हमने मिनिमम ब्रैकेट डाला है 500 वर्ड्स, मैक्सिमम आपकी मर्जी जितना लिखना लिखो, 10,000 वर्ड लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Can anybody from this session tell me एक 500 वर्ड का आर्टिकल लिखने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? कोई भी टॉपिक ऑफ योर चॉइस. So maximum I think half an hour. रिसर्च करने के बाद भी सपोज आपने रैंडमली एक टॉपिक चूज किया, उस पर थोड़ा बहुत रिसर्च भी करना है, रिसर्च करके फिर लिखना है, कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? So 45 minutes to 1 hour. चलो मैक्सिमम टाइम लेते हैं 1 घंटा. 1 घंटा टाइम लगेगा आर्टिकल राइटिंग में. अब सेम चीज पकड़ लेते हैं, 2 वीडियो बनाने हैं 5 से 10 मिनट के, 2 नया टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर वीडियो प्रेजेंटेशन बनाने हैं, उसको टेलीग्राम चैनल में अपलोड करते हैं. रिसर्च करके उसके बाद बनाने में 10 मिनट का वीडियो मैक्सिमम पकड़ते हैं, प्लस बाकी टाइम रिसर्च. कितना टाइम लगेगा 2 वीडियो बनाने में? कैन एनीबॉडी टेल मी? 40 मिनट्स. इसको भी 1 घंटा पर वीडियो पकड़ लेते हैं. 2 वीडियो बनाने में 2 घंटा और एक आर्टिकल लिखने में 1 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम टाइम. इससे ज्यादा लगेगा? नहीं लगेगा. एक इंटर्नशिप में अगर आप फिजिकल इंटर्नशिप भी करते हो तो भी आपको सुबह 9 बजे से 6 बजे देना पड़ता है, और इसके लिए हमने कोई डेडलाइन भी नहीं रखा है. बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दो, 5 बजे स्टार्ट कर दो या रात को 10 बजे स्टार्ट कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट
I want your article to be posted on the same day. आप किसी भी टाइम में करो, अपना कॉलेज अटेंड करो, टेस्ट अटेंड करो, अदर एवेन्यूज, फैमिली कमिटमेंट, मूवी वीवी जो करना है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसी दिन पे होना चाहिए, बिकॉज हम डेली बेसिस में आपका अटेंडेंस मार्क करेंगे और आपका डेली टास्क होगा ये। तो अगर आप आज का टास्क कल करोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मार्क द अटेंडेंस कि आपने आज का क्या किया है। सो आपको 12 बजे से पहले आपका आर्टिकल आप पोस्ट करोगे, उसका यूआरएल आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे और टेलीग्राम पे वीडियो अपलोड करोगे, जिससे 12 बजे से पहले आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि आज सपोज 1 तारीख है तो आपका 1 तारीख का ये सारा वीडियो आया हुआ है, क्योंकि अब रात को 12 बजे के बाद अगर पोस्ट करोगे तो वो 2 तारीख का डेट आ जाएगा और हमें वो पता चलेगा कि ये असाइनमेंट ये 2 तारीख है, क्योंकि हम डेट वाइज फिल्टर करेंगे। तो अगर आप 12 बजे के बाद करोगे, अगर आप 12:01 पे भी करोगे तो वो 2 तारीख का डेट आएगा एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका 1 तारीख का असाइनमेंट कहाँ गया। फिर हम आपको बार बार मैसेज करेंगे, भैया आपका 1 तारीख का असाइनमेंट आपने किया नहीं, आप एब्सेंट थे क्या। सो आई डोंट वांट दिस टू हैपन। तो आप किसी भी टाइम में करो, बट उसी दिन पे करना, उस दिन का असाइनमेंट, जस्ट फॉर रिकॉर्ड पर्पस। आपके ऊपर हम कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं कि आपको रोज लाइव सेशन 4 बार करना है। यस, हम 2 बार कराएं लाइव सेशन, 3 बार कराएं, ये हमारी मर्जी। आपको सीखने का मन है आप अटेंड करो, आपको सीखने का मन नहीं है मत अटेंड करो, आपकी मर्जी, कोई प्रेशर नहीं है। बट आर्टिकल राइटिंग एंड वीडियो प्रेजेंटेशन आपको डेली बेसिस में करना है। आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे आप सीखोगे, आप नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे। हम आपको गला पकड़ के तो करा नहीं सकते, ना ही हम आपको हम अपनी तरफ से कोई टॉपिक दे रहे हैं, कोई स्पेशल एरिया दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट बैच में बहुत क्वेश्चन आया था कैंडिडेट लोगों का कि सर हमें सिविल में इंटरेस्ट है, आप हमें क्रिमिनल की टॉपिक दे रहे हैं। कोई बोल रहा है सर हमें कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट है, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक दे रहे हैं। तो इस चीज को कवर करने के लिए हमने आपके ऊपर में फ्रीडम छोड़ दी है। आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आर्टिकल और वीडियो दोनों का टॉपिक खुद चूज करो, खुद रिसर्च करो। कोई क्वेश्चन होता है, वी ऑल आर देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। कभी भी आपको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. Any one of the team leader will definitely answer to your question as soon as possible. So there is nothing to worry. We are always there to help you. And believe me guys, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत करके 1 महीना इस चीज को अगर कर लिया, ट्रस्ट मी, महीने के लास्ट 30 तारीख को या 31 जो भी का महीना है ये, उस दिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा, यू विल, इट इज माई गारंटी, गारंटी मीन्स गारंटी, जितना आप एक फिजिकल इंटर्नशिप में सीखोगे उससे कहीं ज्यादा आपकी नॉलेज होगी मंथ एंड में, बिलीव मी। और ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये पास्ट फीडबैक दिया है कैंडिडेट लोगों ने पास्ट इंटर्नशिप के, कि इतना तो उनको सीखने को फिजिकल इंटर्नशिप में भी नहीं मिलता, कोई सीनियर तो इतना सिखाया नहीं। सो ट्राई टू डू इट। वीडियो प्रेजेंटेशन डेली करना है, ये आपका डेली टास्क होगा। अब हम बात करेंगे लास्ट, जस्ट टू कट शॉर्ट, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो रहा है, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस, इसको अपलोड भी करना है कि जिन्होंने अटेंड नहीं किया है वो इसको अटेंड कर सकें, इसको अपलोड करना है। सो लास्ट पॉइंट विच वी विल कवर इज सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो प्रो वाले बच्चों को, जिन्होंने प्रो वाला बैच ज्वाइन किया उनको प्रो वाला सर्टिफिकेट मिलेगा, जिन्होंने रेगुलर इंटर्नशिप किया उनको रेगुलर इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा। नॉलेज में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्रो वाले को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रही है, फॉर दैट दे हैव पेड इट, दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। हमने किसी को फोर्स नहीं किया, बिकॉज लर्निंग पार्ट में वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। सो प्रो वाले बच्चों के लिए भी और स्मार्ट वाले बच्चों के लिए भी लर्निंग में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम जितना हो सकेगा सबको इक्वली ट्रीट करेंगे एंड इक्वली सिखाएंगे। कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स है इन द फॉर्म ऑफ स्टडी मटेरियल एंड ऑल, वो उनको एक्स्ट्रा मिलेगा, फॉर दैट दे हैव पेड इट अ नॉमिनल अमाउंट। सो इसलिए ये सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है कि प्रो वाले बच्चे को हम अल्बर्ट आइंस्टाइन बना देंगे और बाकी बच्चे को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको भी उतना ही मेहनत से, उतना ही शिद्दत से, उतना ही डेडिकेशन से सिखाएंगे जितना हम प्रो वाले बच्चे को सिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए आप लोग दोनों बराबर हो। इट्स लाइक 2 चाइल्ड ऑफ 1 पेरेंट, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में सर्टिफिकेट पे आते हैं।
तो लेट मी टेल यू, आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा टू रिसीव दिस सर्टिफिकेट, व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस वर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। कल जाकर के मत बोलना कि सर आपने ये बात बताया नहीं था। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंटर्नशिप 30 दिन का है एंड 30 दिन में 2 वीडियो एंड 1 आर्टिकल, दैट इज 3 असाइनमेंट इज योर मैंडेटरी असाइनमेंट फॉर दिस इंटर्नशिप ऑन अ डेली बेसिस। 90 days means 30 days means 90 असाइनमेंट। 30 दिन का इंटर्नशिप हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक दिन अगर 31 का भी महीना होता फिर भी हम उसको छोड़ देते, जस्ट टू कीप एन एवरेज। वी विल काउंट 30 days का असाइनमेंट एंड 3 असाइनमेंट पर डे के हिसाब से आपको मैक्सिमम 3 घंटे पर डे देने हैं। अगर आप इस इंटर्नशिप के लिए 3 घंटे अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से, अपने चॉइस ऑफ टॉपिक के हिसाब से अगर आप 3 घंटे नहीं दे सकते, एक फिजिकल इंटर्नशिप में भी इससे ज्यादा टाइम देना पड़ता है, तो फिर ऐसे इंटर्नशिप मत करो जहां पे आप 3 घंटे भी टाइम नहीं दे सकते हो, वो भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। देन डोंट डू दिस इंटर्नशिप। आपको मैक्सिमम 3 घंटे पर डे देने हैं, बट आपको ये 3 असाइनमेंट डेली बेसिस में करने हैं। 2 वीडियो असाइनमेंट, 1 रिटन असाइनमेंट। एंड महीने में कितने असाइनमेंट होते हैं अगर हम 30 दिन का महीना पकड़े, कोई बता सकता है? So 90. 90 assignment is your eligibility criteria to receive your certificate. अगर कोई भी आदमी मेरे को 89 असाइनमेंट भी देगा, they will not get their certificate. Let me be very clear. मंथ एंड में जाकर के मेरे साथ झगड़ा करने मत आना कि सर मैंने 89, सिर्फ एक ही कम है सर। रूल इज रूल एंड द रूल इज फॉर एवरीबडी। क्योंकि अगर मैं किसी एक बंदे को 89 असाइनमेंट पे भी सर्टिफिकेट देता हूं, then that will be complete injustice with the candidate who has done 90 assignment. Am I right or wrong? Can anybody answer this? Yes, sir. अगर कोई Right, बंदा sir. 5 दिन काम करता है, 5 दिन काम करने के बाद बोलता है सर मुझे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दे दो, कंप्लीशन मत दो, सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दे दो, और एक बंदा पूरा महीना मेहनत करता है, रेगुलर लाइव सेशन अटेंड कर रहा है, रोज के असाइनमेंट टाइम पे कर रहा है, करके उसको भी हम सेम सर्टिफिकेट देते हैं, तो क्या ये जस्टिस होगा? No, sir. Sir, No, sir. So but in we case have of made Canada, a rule. 90 असाइनमेंट कंप्लीट होगा तो ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड दिस आई एम टेलिंग दिस ऑन दिस रिकॉर्डेड वीडियो। अगर 89 भी होगा आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच करके ये इंटर्नशिप ज्वाइन किए हो कि भैया रोज शक्ल दिखा देंगे, कभी मन होगा असाइनमेंट करेंगे, कभी मन नहीं होगा नहीं करेंगे, महीने के एंड में तो बैठे बैठाए सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, तो लेट मी टेल यू गाइस, वी आर नॉट हियर टू गिव फ्री सर्टिफिकेट और सेल सर्टिफिकेट, ना ही हम सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल द कैंडिडेट, इरेस्पेक्टिव आप वीआईपी स्मार्ट में हो या वीआईपी प्रो में हो, आई डोंट माइंड। वीआईपी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल इंटर्नशिप प्रोग्राम। सो चाहे आप वीआईपी प्रो मॉडल में हो या वीआईपी स्मार्ट मॉडल में हो, किसी के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। 90 वीडियो मीन्स यू रिसीव द सर्टिफिकेट, इवन 1 वीडियो लेस, 89 भी है, फॉरगेट अबाउट 5-10 कम, एक भी कम रहेगा, यू विल नॉट गेट योर सर्टिफिकेट। महीने के एंड में मेरे से मांगने भी मत आना भूल से, बिकॉज आई विल क्लियरली से अ नो टू यू, बिकॉज मैं किसी एक बंदे के लिए दूसरे के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता। फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल। जो मेहनत करेगा उसे सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप ये सोच के ज्वाइन किए हो कि हमें फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा महीने के एंड में, तो प्लीज लीव दिस इंटर्नशिप राइट नाउ, टुडे ओनली। फ्री सर्टिफिकेट हम नहीं दे रहे, ना ही कोई सर्टिफिकेट बेच रहे हैं। अगर आपका एक भी असाइनमेंट कम होगा, आई नीड, वी विल शेयर 1 एक्सेल शीट विथ यू। डेली बेसिस में आपका टॉपिक, उस एक्सेल शीट में आपका नाम लिखना होगा। आपको डेली बेसिस में आपको डेट लिखना पड़ेगा, और वहां पे ऑप्शन रहेगा असाइनमेंट 1 रिटन, असाइनमेंट 2 वीडियो, असाइनमेंट 3 वीडियो। डेली बेसिस में आपको उस टॉपिक, जो टॉपिक आप चूज करोगे उस टॉपिक का नाम लिखना पड़ेगा, और वेबसाइट में आप जो पोस्ट करोगे उसका यूआरएल पोस्ट करना पड़ेगा। आर्टिकल के केस में
वीडियो के केस में जो भी वीडियो आप हमें टेलीग्राम में भेजोगे, आप उसका टॉपिक उस एक्सेल शीट में अपडेट करोगे। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, जैसे असाइनमेंट 1 एंड 2 विल बी वीडियो, असाइनमेंट 3 विल बी रिटन आर्टिकल। सो असाइनमेंट 1 सेम चीज, टॉपिक का नाम लिखोगे, उसके बाद उस वीडियो को हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल में, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके आप उसका यूआरएल कॉपी करके पेस्ट करोगे वहां पे। यू हैव टू अपडेट योर एक्सेल शीट ऑन अ डेली बेसिस। I will answer to all your question. Don't worry, Pragya. We'll have a question answer series after this. We'll clear all your doubts. Don't worry. मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपको क्या करना है, आपको एक्सेल शीट में डेली बेसिस में अपने टॉपिक का नाम लिखना है, और आपने जो चाहे वो वीडियो पोस्ट किया है उसका यूआरएल पेस्ट करना है, या असाइनमेंट डाला है रिटन वेबसाइट पे, ब्लॉग पे, तो उसका यूआरएल कॉपी करके पोस्ट करना है। आपको ये शीट डेली बेसिस में अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि पूरे महीने काम किया और लास्ट में 30 तारीख को फटाफट टॉपिक अपडेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरी डे इन द मॉर्निंग ओनली यू हैव टू चूज द नेम ऑफ योर टॉपिक। आप किसी भी टाइम में कर लो, बट उसी दिन करना है डेली बेसिस में, जिस टाइम में आप असाइन। हाँ, आप अपने हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। बाकी और लैंग्वेज में मत करना, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर ऑल द टीम मेंबर्स टू अंडरस्टैंड। बट हिंदी इंग्लिश, बिकॉज हमारा ये पर्पस है, दिस विल बी कॉन्सेप्ट ऑफ टीम वर्क एंड क्यूमुलेटिव लर्निंग, सो दैट आपके वीडियो से दूसरे को भी फायदा होना चाहिए। सो काइंडली मेक द वीडियो ईदर इन हिंदी और इंग्लिश। मैं इंग्लिश में ही मैंडेटरी नहीं बोल रहा हूँ, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसका यूआरएल आपको अपलोड करना है, एक्सेल शीट में डेली बेसिस में पेस्ट करना है। डेली बेसिस में अपना टॉपिक का नाम वहां अपडेट करना है, कि हमें पता चले कि आज का असाइनमेंट किसने किया, किसने नहीं किया है, और आपका टॉपिक क्या है। अदरवाइज हमें बार बार आपको मैसेज करना पड़ेगा, आपका टॉपिक क्या था आज का, आपका टॉपिक क्या था आपका, ये नहीं होना चाहिए। सो वी हैव केप्ट इट। सबमिशन विल स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन आंसर करेंगे गाइस, डोंट वरी। अभी क्वेश्चन मत पूछिए, वंस वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर विल डू द क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है ना। आपको इस तरीके से डेली अपना एक्सेल शीट अपडेट करना है, सो दैट द बैकएंड टीम कैन चेक योर असाइनमेंट एंड डू द इवैल्यूएशन ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको देन एंड देयर गाइड कर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे ये चीज मिस्टेक कर रहे हो, सो दैट यू कैन करेक्ट इट। अगर 30 दिन का असाइनमेंट का आप एक बार में एक्सेल शीट अपलोड करोगे, कुछ मिस्टेक होगा तो लास्ट डे में पूरा असाइनमेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो ना। या हम अगर उसको लास्ट डे ऑफ द इंटर्नशिप असेसमेंट करने बैठेंगे तो 30 दिन का असेसमेंट एक दिन नहीं किया जा सकता है। सो वी विल कीप ऑन डूइंग द असेसमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो काइंडली अपडेट योर एक्सेल शीट ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। वीडियो का साइज थोड़ा छोटा रखना, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो बहुत बड़ा साइज हो जाने से अपने फोन के कैमरा के सेटिंग में थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके रखना, या कोई ऐप यूज कर लेना, काइन मास्टर या कुछ भी, जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, जिसमें फॉर्मेट छोटा भी किया जा सकता है। वीडियो का साइज छोटा रखना, जिससे आपको टेलीग्राम पे भेजने में कोई दिक्कत ना हो। एंड कीप द टाइम लिमिट। अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा कोई टॉपिक आपने चूज किया है जो बड़ा है साइज में, इट विल टेक मोर देन 10 मिनट, तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, बट उस केस में आप एक वीडियो को 20 मिनट 25 मिनट बनाने के बजाय आप क्या कर सकते हो, उसको 2-3 पार्ट में कर सकते हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बट एक वीडियो का साइज 10 मिनट से बड़ा नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़े तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके 2 वीडियो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जो बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप आर्टिकल भी 500 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हो और वीडियो भी 10 मिनट से ज्यादा बना सकते हो, बट इनटू 2 पार्ट्स, 10-10 मिनट के 2 वीडियो या 3 वीडियो या 4 वीडियो, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द टॉपिक। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 5 to 10 मिनट इन केस ऑफ वीडियो एंड 2 वीडियो एंड 500 वर्ड्स फॉर आर्टिकल राइटिंग। इतना टाइम अगर आप इस इंटर्नशिप में नहीं दे सकते हो तो गाइस प्लीज डोंट डू दिस इंटर्नशिप, बिकॉज इट बिकम्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस कि डेली आपको फॉलो अप करे, आपका आज का असाइनमेंट नहीं आया, आज का असाइनमेंट नहीं आया, करो करो करो। आई डोंट वांट दैट। वी आर नॉट अ स्कूल बॉयज। हम क्लास 5-6 में नहीं पढ़ रहे जहाँ पे टीचर को रोज रिमाइंडर देना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर ट्राइंग टू, दिस इज अ इंटर्नशिप और कोचिंग में फर्क होता है। डोंट ट्रीट दिस टू बी अ स्कूल और कोचिंग सेंटर। हम आपके पीछे भाग नहीं सकते, हमें और भी काम है। वी आर इनटू डेली प्रैक्टिस, सो प्लीज अपना काम टाइम पे कर लेना एंड फॉलो द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैक्सिमम आपको जितना करना है करो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बट मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हमने इतना डाला है क्योंकि
मिनिमम का पर्पस होता है सो दैट एवरीबडी कैन डू इट, कीपिंग इन माइंड दैट दे हैव अदर कमिटमेंट ऑल्सो। और इसमें हमने असाइनमेंट को इसी हिसाब से डिजाइन किया है कि आप किसी भी टाइम में इसको कर सकते हो, बट आपको उसी दिन खत्म करना है। लाइव सेशन हम कोशिश करेंगे डेली करवाने का, सो दैट लाइव सेशन विल बी ऑन प्रैक्टिकल टॉपिक्स, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, सो दैट आपको डे टू डे कोर्ट में क्या होता है, क्लाइंट के सामने क्या होता है, आपको सीखने को मिले, तो वो भी चीज हम कराएंगे। हाउएवर आपके तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको लाइव सेशन अटेंड करना ही है, हमारे तरफ से भी कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम रोज करवाएंगे ही। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एंड आवर अवेलेबिलिटी। जिसको टाइम है करो, नहीं करना नहीं करो। अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा लाइव सेशन कराना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम भी अपने फ्री टाइम में किसी एक प्रैक्टिकल टॉपिक पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से उसको देखो। अगर आपको कोई डाउट होता है आप उसी में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करो एंड वी विल आंसर इट। वी विल ट्राई टू कीप इट दिस वे ऑल्सो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा चीज हम सीख सकें, इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग अ फिक्स्ड टाइम फॉर दिस सेशन। ठीक है, लाइव सेशन हो सकेगा हम वो भी कराएंगे, जिसको अटेंड करना है करो, नहीं करना मत करो। क्योंकि अगर फिक्स टाइम रखेंगे और मैंडेटरी कर देंगे तो बहुत बच्चों का हो सकता है उस टाइम में कॉलेज हो, क्लास हो, टेस्ट हो, कुछ भी हो। सो वी डोंट वांट टू मेक दिस एज मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी टू अटेंड द सेशन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। और अगेन आई विल रिपीट once again, 90 assignment for 30 days, 3 assignment per day. 90 assignment you do, you get your certificate. Even 1 assignment less, you will not get your certificate. बाद में आप कुछ भी करो, मैसेज करो मेरे को, डीएम करो, सोशल मीडिया पे गाली लिखो, सोशल मीडिया पे लॉ फर्म हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट, ये वो कुछ भी आप पोस्ट करो, इट रियली डजंट मैटर टू मी। भगवान के आशीर्वाद से मैंने ऐसी प्रैक्टिस करी नहीं है, ना ही मैंने ऐसी वकालत करी है कि मेरा बिजनेस सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं है। तो उसके बाद में आप सोशल मीडिया पे गाली लिखो, हैरेसमेंट करो, आप ट्रेल चलाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर अगर आपका एक भी असाइनमेंट कम होगा, वी विल नॉट गिव यू द सर्टिफिकेट। सो कोई भी बच्चे अगर ऐसी माइंडसेट के साथ में कि हमें फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाएगा कॉलेज में दिखाने के लिए, गो एंड ज्वाइन सम अदर इंटर्नशिप, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर सेशन वन बाय वन। आप अपने क्वेश्चंस को इस बेटर वॉइस आउट करने के बजाय आप चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो, हम वन बाय वन सीरियल वाइज आंसर देते जाएंगे। सबसे पहले मेरे पास प्रज्ञा का क्वेश्चन आया है, सर इन केस एन इंटर्न इज नॉट एबल टू गिव 2 वीडियो इन अ सिंगल डे or not able to give an article on one day but covers that up the next day, so instead of 2 videos submits 3 video or submits 2 article instead of 1, that will be accepted? Let me tell you, आपके ये डेली असाइनमेंट प्रज्ञा ऑन अ डेली बेसिस करना है। हाउएवर वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। अगर कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि आप बीमार हो, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, तो इट इज योर ड्यूटी टू इंटीमेट इन द ग्रुप सो दैट आपके नाम के एंट्री चढ़ी रहे कि आप आज बीमार हो। आज सुबह में सपोज आपका तबीयत खराब है या आपका कॉलेज का एग्जाम है, तो आप सुबह में ही मैसेज कर देना ग्रुप में कि सर आई एम नॉट वेल टुडे, या आई हैव माई एग्जाम टुडे, आई विल नॉट बी डूइंग माई असाइनमेंट टुडे एंड आज का कोटा मैं कल कंप्लीट करूंगी। So that when I go ahead and check your assignment for that day, I see your message that Pragya has written a message that she is not well today or she has exam today and she will be doing the assignment 1 तारीख का assignment 2 तारीख को। So मैं आपका assignment फिर 2 तारीख को check करूंगा। But let me tell you, this cannot be done on a daily basis. एक बार हो सकता है, 2 बार excuse किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। Once in a blue moon accepted. But if you make it a habit, we will mark you absent. Simple answer. कभी कतार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है हम भी बीमार पड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमारा भी एग्जाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं भी बिजी हो सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अगर आपके पास डेली ऐसा ही एक्सक्यूज होगा, एंड दिस आंसर इज देयर फॉर एवरीबडी, हर लोगों के क्वेश्चन के आंसर सबके लिए एप्लीकेबल है, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। सो कभी कतार कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर एक्सक्यूज अगर ऐसा ही आएगा, वी विल मार्क यू एब्सेंट। सो कीप दिस इन माइंड। प्रज्ञा, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन।
Next question, Advocate Prashant Tyagi, can we make video in Hindi? Yes, you can make video in Hindi. अपने लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी या इंग्लिश जैसा आप कन्वीनियंट हो, क्योंकि हमारा पर्पस इस वीडियो के पीछे कंटेंट बढ़ाना नहीं है, आपके नॉलेज को बढ़ाना है। और नॉलेज चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, नॉलेज नॉलेज ही होता है। और वीडियो बनाने का पर्पस है टू इम्प्रूव योर पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो वो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। ट्राई टू मेक इन हिंदी, सॉरी इंग्लिश, क्योंकि इससे आपकी, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हो तो वो भी आपकी इंप्रूव होगी। हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। थोड़ा थोड़ा अगर आपको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है तो थोड़ा थोड़ा अपने हिंदी वाले वीडियो में ही इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज करना, दूसरों के वीडियो को देखना एंड सी व्हाट काइंड ऑफ वर्ड एंड टर्मिनोलॉजी दे आर यूजिंग एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट, एंड आई एम श्योर by the month end even you will start making video in English. I don't have any problem if you start with Hindi at the moment. Next is the submission will be starting from today, right? Yes, Simran Bhaskar, the submission, the assignment will be shared with you after some time before 12 o'clock, क्योंकि आज तो सेशन में हम थोड़ा बिजी हो गए हैं। कल से आपको 9 बजे से पहले आपके असाइनमेंट आपको पोस्ट कर दिए जाएंगे आपके ग्रुप में, एंड यू विल हैव द होल डे। आज के दिन में सिर्फ एक्सक्यूज कीजिए, विल पोस्ट द असाइनमेंट बिफोर 12 o'clock, एंड आपको रात को 12 बजे से पहले कभी भी आप सबमिट कर सकते हो, बिकॉज 30 दिन का 90 असाइनमेंट का हमने टारगेट लिया है। सो आज से ही हमारा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सब कुछ सारा डिटेल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, सो यू कैन फॉलो दैट, एंड आई एम श्योर अभी हमारे पास 12 बजे भी अगर हम काउंट करते तो 12 घंटा टाइम है, वी कैन कंप्लीट इट। कल से आपको 9 बजे से पहले आपके असाइनमेंट आपके ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, सो दैट यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट इट। आज के लिए थोड़ा मैनेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SV Karthik, सर माय कॉलेज रिक्वायर्स मी टू फिल इन एन इंटर्नशिप डायरी व्हिच इंक्लूड्स ऑल द वर्क डन एंड असाइंड टू द इंटर्न इन अ डे फॉर द पीरियड ऑफ द इंटर्नशिप व्हिच इज आल्सो टू बी साइंड एंड वेरीफाइड बाय द मेंटर। Will such provision be provided on successful completion of the internship? Yes, that is the reason I am telling you to maintain the Excel sheet, guys. आप डेली बेसिस में अगर एक्सेल शीट अपडेट करोगे तो मंथ एंड में जो भी लाइव सेशन हम करेंगे उसका भी हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। दैट इज द रीजन वी आर अपलोडिंग इट इन द यूट्यूब चैनल। आप अपने डेली डायरी मेंटेन करोगे और मंथ एंड में अगर किसी को अपने कॉलेज में दिखाने के लिए चाहिए तो उसी एक्सेल शीट का हम प्रिंट आउट निकाल के हमारी कंपनी का स्टैंप मार करके आपको दे देंगे, डिजिटली साइन करके या स्टैंप मार करके दे देंगे, विच यू कैन प्रेजेंट इट इन योर कॉलेज दैट यू हैव डन ऑल दिस इंटर्नशिप वर्क इन दिस 30 days. सो नथिंग टू वरी, आपको मिलेगा। अगर आपको चाहिए हमारे साइड से जो सपोर्ट चाहिए, यू विल गेट दैट इफ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड एंड डिलिजेंटली। हमारा पर्पस आपको सिखाना है, तो जितना सपोर्ट हो सकेगा हम आपको करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिकिया इज आस्किंग, क्या बात है, कार्तिकिया बहुत कॉमन नेम है, लास्ट बैच में भी कार्तिकिया था। ओके सर, इन केस ऑफ एनी जेन्युइन रीजन फॉर द डिले लाइक हेल्थ, गाइज हेल्थ इश्यूज, पेट खराब, ये वो, बुखार, एग्जाम, ये सब कभी कतार हो सकता है, रोज नहीं। सो एज आई सेड, जेन्युइन रीजन कभी कतार होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आज का असाइनमेंट कल दे सकते हो, बट असाइनमेंट तो आपको 90 के 90 कंप्लीट करने ही है। कभी कतार अगर आज का असाइनमेंट नहीं हो पाता है, कल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो कभी कतार वंस इन अ ब्लू मून होना चाहिए, नॉट ऑन ए रेगुलर बेसिस। सो यू कैन बी एक्सक्यूज्ड इफ इट इज इन अ रेयर सिनेरियो और वंस इन अ ब्लू मून सिचुएशन, बट आपको करना तो 90 असाइनमेंट ही है फॉर द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक will be provided by you? Aman Jain is asking. No guys, we are not keeping you under any kind of foundation, क्योंकि लास्ट बैच में हमने कोशिश की थी अपने तरफ से टॉपिक देने की, पर मेजर जो क्वेश्चन आ रहा था, सर हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वी हैव इंटरेस्ट इन सिविल, वी हैव इंटरेस्ट इन कॉर्पोरेट, तो इसकी वजह से हमने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला है। आप टॉपिक खुद से चूज कर सकते हो, उस टॉपिक का नाम रोज सुबह में एक्सेल शीट में अपडेट कर देना, सो दैट हमें भी पता चले आपका टॉपिक क्या है, क्योंकि जब हम आपकी इवैल्यूएशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा आपका टॉपिक क्या है। इट विल बी इजी फॉर अस टू इवैल्यूएट, बट अपने टॉपिक आप खुद चूज करो, कोई दिक्कत नहीं है।
अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सिविल, क्रिमिनल, कॉर्पोरेट, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉ, मरीन लॉ, जिस एरिया में आपको इंटरेस्ट है, एनर्जी लॉ, उस एरिया पे वीडियो बनाओ, तो आर्टिकल लिखो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन चूज योर टॉपिक. Next, Advocate Prashant Tyagi again. Sir, as you said, the internship timing will be office timing 9 to 6. Is it our convenience or is it our convenience? Guys, हमने टाइमिंग रखा है 9 to 6, बट हम आपके लिए मैंडेटरी नहीं कर रहे हैं कि आपको 9 बजे से 6 बजे तक अपने रूम में टेबल पे बैठ करके कंटिन्यू काम करना है. हम कोशिश करेंगे 9 to 6 का टाइमिंग फॉलो करने का, कि इससे आपका पर्सनल लाइफ खराब ना हो. गाइज, एज आई सेड, वर्क लाइफ बैलेंस एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट आपका पर्सनल लाइफ खराब है, ऑब्वियसली भाई. अगर आप रोज रात को 10 बजे 11 बजे तक घर में घर वाले सो रहे हैं और आप बैठ करके कंप्यूटर ऑन करके, लाइट ऑन करके, लैपटॉप में काम कर रहे हो, तो घर वाले परेशान होंगे ना. या रात को घर वाले सो रहे हो और आप 12 बजे रात को बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, तो घर वाले परेशान होंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. डोंट डिस्टर्ब योर फैमिली बिकॉज ऑफ योर इंटर्नशिप. दैट्स द रीजन. वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So we will give you the assignment before 9 o'clock. You try to keep it before 6 o'clock. ठीक है ना. सो दैट जो हम एक स्टैंडर्ड फिजिकल इंटर्नशिप में ऑफिस टाइमिंग फॉलो करते हैं 9 to 6, हम उसी टाइम को फॉलो करें. हाउएवर इट इज नॉट मैंडेटरी. आप अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से रात को 12 बजे से पहले कभी भी सबमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, वो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से. हम अपनी टाइमिंग 9 to 6 फॉलो करेंगे, क्योंकि आपके आज के जो भी वीडियो रहेंगे वो अगले दिन 6 बजे से पहले अपलोड हो जाएंगे. ठीक है, आपके आर्टिकल्स जो आप लिखोगे आज रात को 12 बजे तक, जो भी सबमिट करोगे वो अगले दिन 6 बजे से पहले सारे असेसमेंट हो जाएंगे. ठीक है, आपके लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, बट हाँ, रोज के असाइनमेंट रोज ही करने हैं. रात को 12 बजे से पहले हमारे पास आ जाना चाहिए, सो दैट आपके उस डेट की एंट्री चल जाए. नेक्स्ट, for Pragya is asking, sir, for our video assignment, can you provide us with topics initially? प्रज्ञा, आपको हेल्प के लिए मैं आपको टॉपिक्स तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ, आपको ये हेल्प जरूर कर सकता हूँ. अगर आपको चाहिए कि टॉपिक कहाँ से मिलेगा, तो टॉपिक कैन बी एनीथिंग. आप गूगल में सर्च करो, गूगल पे जाओ, जस्ट टाइप लीगल न्यूज और लेटेस्ट लीगल न्यूज या लेटेस्ट लीगल अपडेट, आपको हजारों टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी. चूज एनी टॉपिक यू वांट. किसी भी लेटेस्ट अफेयर पे लिखो, किसी भी करंट लीगल न्यूज पे लिखो, कोई रिसेंट जजमेंट पे लिखो, कोई नया लीगल इशू हुआ है, ऐसे कैलकाटा हाई कोर्ट का इशू या नालंदा केस, या फॉर एग्जांपल दिल्ली में नवनीत कालरा केस, कोई भी नए टॉपिक, या कोई एक डोमेस्टिक वायलेंस पे लिख लो, कॉर्पोरेट लॉ पे, एनर्जी लॉ पे, किसी भी चीज पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है. हजारों करोड़ों टॉपिक है, डोंट वरी. आप गूगल में सर्च भी करोगे ना लेटेस्ट लीगल टॉपिक्स, आपको 50 आइडियाज मिल जाएंगे. वाई टू वी रेस्ट्रिक्ट बाय गिविंग अ टॉपिक फ्रॉम माय साइड? हो सकता है वो आपको नहीं अच्छा लगे, या आपको नहीं आता हो, या आपके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो. तो जस्ट टू कीप इट सिंपल, यू आर एट अ फ्री विल टू चूज योर टॉपिक. ठीक है ना. नेक्स्ट, निष्ठा इज आस्किंग, सर विल इट बी पॉसिबल फॉर यू टू प्रोवाइड अस विद अ सजेस्टिव? ये सेम क्वेश्चन है प्रज्ञा का. आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस. Dhruv Tomar, sir, about the I'm sorry. Sir, about the Excel sheet one has to maintain on their own, like every student is maintaining on their own, or is it an Excel sheet shared by the firm? Guys, we are working on Google Workspace. So हमने एक फॉर्मेट बना दिया है Google Workspace पे, और वो Excel sheet को एडिट मोड में आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा. और आप लोगों को कुछ नहीं, एक ब्लैंक शीट है उसमें आपको उसी शीट को कॉपी करके एक नया शीट बना लेना है उसी में. एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सबको अपना अपना शीट उसमें प्लस 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 करके ऐड कर देना. ऐड करके सेम फॉर्मेट, जो ब्लैंक वाले फॉर्मेट में जो रहेगा, उसी फॉर्मेट में आप अपना नाम से रीनेम करके एक नया पेज बना लेना, उसमें अपना डिटेल अपलोड कर देना. उसका आपको एक इंस्ट्रक्शन वीडियो भेज दिया जाएगा, हाउ टू अपडेट द एक्सेल शीट. बट ये दिस विल बी शेयर्ड शीट. सबको अपना अपना अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है. फॉर्मेट आपको दे दिया जाएगा और सबको उसी में एक अपना नया शीट क्रिएट कर लेना उसी लिंक पे, जो कि एडिट मोड में रहेगा. यू ऑल कैन एडिट दैट.
एंड उसमें आप लोग अपना अपलोड कर सकते हो, फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, और कैसे उसको मेंटेन करना है उसका एक इंस्ट्रक्शन वीडियो भी मिल जाएगा। आर्टिकल कैसे पोस्ट करना है उसका भी इंस्ट्रक्शन वीडियो मिल जाएगा। वीडियो कैसे बनाना है, क्या क्या गाइडलाइंस है वीडियो का, वो भी आपको मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ईशान अग्निहोत्री इज आस्किंग, सर कैन वी डू द असाइनमेंट in advance if we get to have some pre-planned events, and do we need to do the assignment on the weekend? Guys, ऐसा नहीं हो सकता कि we cannot do this way. Let me tell you very clearly. हाँ, कभी कतार ऐसा हो सकता है कि आपको मान लो कल छुट्टी चाहिए, तो कल का प्रोग्राम आपने यू कंप्लीटेड इट yesterday, that is possible. Today's program you can do tomorrow, that is possible. पर ऐसा नहीं हो सकता कि मंडे से सैटरडे आप काम नहीं करोगे और संडे सारा दिन बैठ करके अपने 7 आर्टिकल लिख लिए, 14 वीडियो बना दिए। ऐसा नहीं होगा, नो। कभी कतार एक्सक्यूज किया जाएगा। दिस इंटर्नशिप का पर्पस समझिए गाइस, हम यहाँ पे असाइनमेंट लेने के लिए और चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्लीज कम आउट ऑफ द मेंटालिटी ऑफ स्कूल लाइफ। दिस इज नॉट अ असाइनमेंट। होमवर्क कंप्लीट नहीं करना है कि रोज घर में आके मम्मी पूछेगी स्कूल से क्या होमवर्क मिला, पापा आके पूछेंगे होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं किया। वी आर नॉट लाइक दैट। इसको डेली का डेली कंप्लीट करने का पर्पस ये है कि डेली आपके ऊपर एक दिन में ज्यादा वर्कलोड ना हो और हर दिन हम कुछ नया सीखें। रोज आप एक आर्टिकल करोगे तो एक चीज आप सीखोगे, 14 चीज आप एक दिन में करोगे तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। फॉर्मेलिटी के लिए असाइनमेंट तो कंप्लीट हो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी देयर इन योर ब्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो ईशान, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर आई हैव अ नेटवर्क इशू। और एक चीज और, आप प्री प्लान भी कर सकते हो कभी कतार। जैसे मान लो कल आपका एग्जाम है ईशान, तो आप एक दिन पहले कल का असाइनमेंट कर सकते हो, बट यू हैव टू अगेन राइट दैट इन द ग्रुप अबाउट दैट एक्टिविटी, सो दैट जैसे आज आपने कल के लिए 2 असाइनमेंट कर दिया, तो आप आज मेंशन कर दो ग्रुप में कि सर मैंने ये 2 असाइनमेंट आज के लिए करे हैं और ये 2 असाइनमेंट कल के लिए करे हैं। क्योंकि आपको हर असाइनमेंट के साथ आपको डेट एंड टॉपिक लिख करके भेजना है, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये 2 वीडियो आपका आज का है और ये 2 वीडियो आपका कल का है। और जो आप यूआरएल पोस्ट करोगे इन केस ऑफ आर्टिकल, तो सेम चीज टॉपिक का नाम और डेट लिख दोगे, सो दैट हमें पता चल जाए कि ये असाइनमेंट आपके किस दिन का है। तो आप प्री प्लान भी कर सकते हो, पोस्ट प्लान भी कर सकते हो, बट ओनली अंडर रेयर सर्कमस्टेंसेस, नॉट रेगुलरली। Next is Aman Jain. Sir, I have a network issue, thus I leave this session. No problem, Aman Jain. Most welcome. Next is Ishita is asking, sir, will drafting be taught to us? Writ petition, PIL, bail application? Yes, we will also have a drafting का session. Ishita, don't worry. And apart from that, आपको जो daily assignment भी दिया जाएगा, उसमें भी आप भी कोशिश करो कि आपको जो टास्क दिया जा रहा है उसमें छोटे मोटे चीज जैसे लीगल नोटिस हो गए, कंप्लेंट हो गए, छोटे पिटिशन हो गए, एप्लीकेशन हो गए, जैसे म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का पिटिशन हुआ, या 138 की एप्लीकेशन हुई, या मेंटेनेंस की एप्लीकेशन हुई, बेल एप्लीकेशन हुई, ये छोटी छोटी चीज आप लोग भी अपने ड्राफ्टिंग में इंक्लूड करो। हाउएवर ड्राफ्टिंग की सेशन हम भी आपके लिए करवाएंगे, सो देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, नेक्स्ट इज अनिश्री। Sir, for videos, can we choose cases as well? Yes, you can choose anything, any legal topic. आपका वीडियो किसी भी लीगल टॉपिक पे हो सकता है। ऑब्वियसली इस चीज पे वीडियो नहीं बनाना कि सोनू सूद ने आज 5 आदमी लोगों को फ्री में खाना खिलाए और बीजेपी के नेता ने 100 लोगों को राशन के किट बांटे। ये सब चीज पे वीडियो मत बनाना। इट कैन बी एनी लीगल टॉपिक, चाहे वो केस हो, जजमेंट हो, करंट इवेंट हो, लीगल चीज से रिलेटेड, कोई केस के नए जजमेंट हो, कोई नए कोर्ट ने कुछ नया किया, कोई नए कोर्ट का नया कुछ नया लेटेस्ट न्यूज है, कुछ भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी लीगल, लॉ प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए। उस वीडियो का फायदा होना चाहिए आपको भी और बाकी टीम मेंबर को भी। शाहरुख खान की बेटी ने आज जिसके साथ फोटो खिंचाए, वो सब टॉपिक नहीं होनी चाहिए प्लीज, ओनली लीगल। Next is Yogya Bhatia. Sir, for pro internship, how can we opt for the online course on any subject?
सर प्रो इंटर्नशिप में ऑनलाइन कोर्सेज, आपको ऑनलाइन कोर्सेज जो है लाइव सेशंस वगैरह आपको रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा, यू कैन वॉच दैट ऑल्सो। हाउएवर जो भी रेगुलर लाइव सेशन होंगे आप उसको कोशिश करो अटेंड करने की, या अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो अपने फ्री टाइम में उस लाइव सेशन को देखना। आई एम श्योर जो हमने इंक्लूड किए हैं दैट विल बी मोर देन एनफ। आपको कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट कोर्स या ऑनलाइन कोर्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी गाइस। इस इंटर्नशिप को 1 महीने के लिए मेरी बात मान करके पूरे डेडिकेशन से करो, आपको कोई ऑनलाइन कोर्स वोर्स ज्वाइन करके पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। देयर विल बी सफिशिएंट स्टडी मटेरियल एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड फ्रॉम आवर साइड, सो डोंट वरी अबाउट इट योग्य। नेक्स्ट इज SV Karthik is asking, can the topic be international matter too? Yes, it can be national or international, no problem, but it has to be a legal topic. National हो international हो कोई दिक्कत नहीं है। Any other question from anybody? 5 more minutes, we have to finish this meeting, already काफी लंबा हो गया है। Any other question? Sir, I have one last doubt. Please ask me. Sir, regarding articles, you said that we can even write it regarding the legal notices or the affidavits or petitions. So, can you brief about how we should go about with it? देखिए ड्राफ्टिंग के वैसे हम एक सेशन करवाएंगे आपके साथ में। हाउएवर अगर आप मान लो कभी फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, तो अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गूगल में भी अगर आप सर्च करोगे ना लीगल नोटिस के फॉर्मेट, तो आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। जस्ट टेक दैट फॉर्मेट, उससे ज्यादा कुछ मत लेना। टॉपिक अपना चूज करो, कॉन्सेप्ट अपना चूज करो, कंटेंट अपना डालो, जस्ट फॉर्मेट लो। हाउएवर ड्राफ्टिंग का सेशन हम करवाएंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत वैसे होगा नहीं। हाउएवर ड्राफ्टिंग के सेशन के लिए वो स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा कि कब ड्राफ्टिंग का सेशन है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अगर हो सके तो अटेंड करना, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में। आपको चैनल का नाम शेयर कर दिया जाएगा लेट्स क्लिक का, या गूगल में आप लेट्स क्लिक सर्च भी यूट्यूब पे करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे आपको सेशन मिल जाएंगे। हाउएवर आप नेट से भी फॉर्मेट निकाल के कर सकते हो, बट हाउएवर केस आपके अपने होने चाहिए, स्टोरी आपके अपने होने चाहिए, लैंग्वेज आपके अपने होने चाहिए। नेट से निकाल के कॉपी पेस्ट करके मत दे देना, क्योंकि वो क्लियरली पता चल जाता है कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। इट शुड लुक लाइक अ रियल नोटिस, जो आप अपने क्लाइंट के बिहाफ में भेजोगे वो रियल नोटिस लगना चाहिए, ठीक है ना। रेडीमेड फॉर्मेट और रियल नोटिस में फर्क होता है, सो काइंडली मेक अ नोट ऑफ दैट कि कुछ भी आप कॉपी पेस्ट ना करो। नेक्स्ट इज, आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन प्रज्ञा। Advocate Prashant Tyagi has asked, can we make video on law subject topics like evidence, constitution, contract? Yes, Prashant, you can make video or you can write article or any subject, any legal law का subject. आपके LLB सिलेबस में जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है, आप किसी भी टॉपिक पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। You choose your topic. Constitution of India has given us the liberty of freedom of speech. So you can choose your own topic, don't worry. Own subject choose करो, own topic choose करो, so that आपके टॉपिक अगर यूनिक होंगे तो बाकी कैंडिडेट को भी कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा ना, जो उनका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन नहीं है। और कुछ भी चीज नया सीखना, हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा जो चीज शायद हमें ना आता हो, तो हमारे लिए भी अच्छा है ना। तो आप अपने टॉपिक चूज करो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। सर विल वी गेट फीडबैक फॉर द आर्टिकल्स एंड वीडियोस फ्रॉम द फर्म? यस, डेली बेसिस में आपको फीडबैक दिया जाएगा, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ आप गलत कर रहे हो, कहाँ आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपको डेली फीडबैक मिलेगा, डोंट वरी। अगर एडवोकेट प्रशांत त्यागी, थैंक यू सर, इफ आई हैव एनी क्वेरी आई आस्क। ओके, नो प्रॉब्लम। कभी किसी को कोई क्वेश्चन होता है, वी ऑल द टीम लीडर्स आर वेरी ओपन टू फीडबैक एंड क्वेश्चंस। यू कैन ऑलवेज पोस्ट योर क्वेश्चन इन द व्हाट्सएप ग्रुप, वी विल बी there to answer you and we will make sure that we will answer all your queries, don't worry about it. Any other question? फटाफट पूछो।
sir, but you mentioned like Dhruv is asking, sir, you mentioned that we should not go for studying topics like just explaining some section of IPC. Yes, kindly don't make your video or article completely theory based. अब ये आपसे कोई क्लाइंट आकर के नहीं पूछेगा सर मुझे बताइए सेक्शन 376 क्या होता है, या सर मेरे को बताइए 13B(1) क्या होता है, या ये मेरे को मत बताइए सर 138 के प्रोविजन क्या होते हैं. कोई क्लाइंट आपसे नहीं पूछेगा. So try to make the video or your article on practical question जो आपसे क्लाइंट आके पूछ सकता है, या कोई लीगल लेटेस्ट टॉपिक पे जहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना पड़े. सेक्शन और आर्टिकल तो आपको बेरेक्ट है, मार्केट में बिक रहे हैं, बेरेक्ट खरीद लो, काफी है पढ़ने के लिए. वी आर नॉट हियर टू, दिस इज नॉट अ लॉ स्कूल गाइज, वी आर नॉट हियर टू स्टडी थ्योरी. हम यहाँ पे प्रैक्टिकल सीखने के लिए आए हैं. तो आपके टॉपिक प्रैक्टिकल होने चाहिए, ऑन लेटेस्ट इवेंट, लेटेस्ट क्वेश्चंस, लेटेस्ट लीगल इश्यूज, ऐसे होने चाहिए. यू कैन चूज एनी टॉपिक. आलोक सिंह, कुछ भी टॉपिक चूज करो बट लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए. What should we refer according to प्रशांत त्यागी's question? प्रशांत त्यागी का क्या क्वेश्चन था? So my name is Dhruv. So actually, tell me. yeah, so I would like to mention that as Prashant asked that we can go for Evidence Act, Constitution Act or Contract Act. So just as you mentioned that we should avoid some specific sections or so, how can we go on like these act? I am just referring to his question. ऐसे केस में आप रीसेंट जजमेंट ढूंढो ना. इस टाइप के केस में कोई रीसेंट जजमेंट आए हो, कोई नए लीगल इशू आए हो, कोई नए केस एनालिसिस कर लो, कोई जजमेंट पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल लो कि अगर आप जज होते तो आप क्या जजमेंट लिखते, या आप एडवोकेट होते, या आप पिटिशनर के साइड से काउंसिल होते तो आपका आर्गुमेंट क्या होता, या आप अगर डिफेंस साइड से काउंसिल होते तो आप क्या एविडेंस देते, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज योर आइडिया. इस टाइप के कॉन्सेप्ट में बनाओ ना, मेक इट मोर प्रैक्टिकल, जहां पे आपको अपना दिमाग यूज करना पड़े. बेरेक तो यार कोई भी खोल के पढ़ सकता है. यस सर, यस सर, गॉट इट. ठीक है ना. एनी अदर guys, we'll end the meeting. I hope I have answered all your question. अगर इसके अलावा कोई question होता है please post your question in the WhatsApp group. We'll try to answer all your queries. ठीक है, we'll end the meeting here and thank you so much for your time and you are most welcome all of you to this virtual internship program for the month of June. Kindly do it properly, do it with full dedication. I'm sure आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेश्चंस हैं, वी विल आंसर ऑल योर क्वेरीज. रेगुलर फीडबैक सेशन होंगे. वी विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस, मैक्सिमम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको देने की कोशिश करेंगे. आपको भी पता है कि वर्चुअल इंटर्नशिप में आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन तो नहीं बना सकते, बट हाँ बहुत कुछ सिखा जरूर सकते हैं. एंड जो भी हमारे टॉप परफॉर्मर्स होंगे इस इंटर्नशिप के, उनको अलग से एक सर्टिफिकेट मिलेगा टॉप 3 परफॉर्मर्स को एज द टॉप 3 परफॉर्मर. वो आपको ओवरऑल बेसिस में इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपकी ऑडियंस एंगेजमेंट क्या है, आपके वीडियोस पे कितने व्यूज आ रहे हैं, एंड आपकी आर्टिकल्स कैसे लिखी जा रही है, आप कैसे टॉपिक पे बना रहे हो, आपकी इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है. हम ओवरऑल बेसिस में टॉप 3 परफॉर्मर डिसाइड करेंगे और उसके लिए आपको अलग से सर्टिफिकेट मिलेगी. और उस टॉप 3 परफॉर्मर को हमारी तरफ से एक सेपरेट रिकमेंडेशन लेटर भी दिया जाएगा. दैट विल बी पर्सनली गिवन बाय मी. ये टॉप 3 परफॉर्मर को दिया जाएगा पर्सनल रिकमेंडेशन लेटर, और एक अलग से एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट दिया जाएगा एज द बेस्ट परफॉर्मर. और ये सिर्फ टॉप 3 परफॉर्मर को दिया जाएगा फ्रॉम दिस इंटर्नशिप बैच. सो वर्क हार्ड. कभी कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अप्रोचेबल. मैं कोशिश करूंगा आपके सब क्वेश्चन का आंसर दूं. मैं ना दूं तो आई एम श्योर मेरे से पहले मेरे टीम लीडर्स आंसर दे देंगे. हाउएवर यू कैन आस्क मी आल्सो, बट लेट मी टेल यू, नो पर्सनल डीएम. जो भी क्वेश्चन पूछना है ग्रुप में पूछो, until and unless something which is very personal which you cannot ask in the group, तो मेरे को पर्सनल डीएम करना. अदरवाइज ट्राई टू कीप एवरीथिंग इन द ग्रुप ओनली. कल जाकर के ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि अभी रिसेंटली लिंक्डइन में जो इशू चल रहा है कि एडवोकेट लोग प्राइवेट मैसेजेस भेज रहे हैं इंटर्न्स को, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने पढ़े हैं. आई डोंट वांट माय लॉ फर्म टू बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ क्रिटिसिज्म.
So कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं until and unless it is very professional and very personal, तभी मेरे को डीएम करना, अदरवाइज मेरे को डीएम मत करना. जो क्वेश्चन पूछना है ग्रुप में पूछो एंड कीप एवरीबडी इन द लूप. ठीक है? नो पर्सनल डीएम until and unless it is very serious. Thank you so much, guys, and I hope you'll enjoy this internship session. And thank you so much, and welcome to all of you in the team of Lexis and Company. Bye-bye. Thank you, sir.